Musli. Mr. Hisham Minamullah sahab, please. جناب اسپیکر صاحب بہت شکریہ آپ کا. میری یہ گزارش ہے آپ سے بھی اور پورے ایوان سے کہ میں کچھ اپنی سوچ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. پچھلے جمعے کو میرے ضلع کے ایک ایم پی اے صاحب ہیں JUI کے منور خان صاحب, انہوں نے 4 سوالات اٹھائے, نکتے اٹھائے, جن میں 1-2 نکتے تو بہت ہی ضروری ہیں کہ میں ان کا جواب دوں. تو بس میں یہ ٹائم تھوڑا چاہوں گا. انہوں نے اپنی بریف سی اسپیچ میں پہلے تو یہ کہا کہ ان کو یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ میں ہشام انعام اللہ کیسے PTI سے منتخب ہوا اور یہاں پہ اس ایوان میں پہنچا. تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اس ایوان میں میرے خاندان کے میرے سے پہلے 8 اور بندے پہنچے تھے, اور جب منور خان صاحب پہلی بار پہنچے یہاں پہ تو اس سے 70 سال پہلے وہ ان ایوانوں میں پہنچے تھے. میں نے الحمدللہ 38,475 ووٹ لیے ہیں, اور جو 2 GUI کے ممبرز ہیں ان کے ووٹ ملا کے تقریباً میرے ووٹ بنتے ہیں. نہ میں غریبوں کی غریبی کا فائدہ اٹھا کے ان کے ضمیر کو خرید کر اس ایوان میں پہنچا ہوں, نہ میں نے کسی کو ووٹ کے بدلے میں جنت کا وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ میں ان کو جنت دلاؤں گا. میں مروتوں کی وجہ سے یہاں پہ پہنچا ہوں. اس قوم کی, مروت بٹنی قوم کی مجھ پر اعتماد ہے, میرے خاندان پر اعتماد ہے, ان کی محبت ہے, ان کا جذبہ ہے, ان کی قربانی ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں وہ بار بار منتخب کر رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ ایک بات کی کہ میں نے اپنے لوگوں کی درخواست پر اپنے ضلع کے نام میں تبدیلی لانے کی ایک تجویز پیش کی تھی چیف منسٹر صاحب کو, اور میں بڑا مشکور ہوں چیف منسٹر محمود خان صاحب کا کہ انہوں نے اس پہ ڈائریکٹو ایشو کیا, کیونکہ یہ ایک جینون ایشو تھا, اور یہ نہ صرف میرا مطالبہ تھا, میرے لوگوں کا مطالبہ تھا. منور خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اس نام کی تجویز کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں لکی مروت کا نام, لکی مروت کے نام میں کون سا لفظ تبدیل کر رہا ہوں, کیوں تبدیل کر رہا ہوں, اور جو نام ہم نے تجویز کیا ہے, میں نے اور میرے باشعور مروت قوم نے اور میرے لوگوں نے, تو وہ نام کیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جناب اسپیکر صاحب کہ ہمارے لکی مروت کے نام میں 2 الفاظ ہیں, ایک ہے مروت, ایک ہے لکی. مروت تو اٹ از آؤٹ آف کوشچن, میں مروت ہوں, میرا خون مروتوں کا ہے. مروت ایک خوددار قوم ہے, ایک بہادر قوم ہے, ایک غیرت مند قوم ہے, ایک ایماندار اور دیندار قوم ہے, اور ایک محب وطن قوم ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں مروت کے نام کو بدلوں. لکی کے نام کی جو تاریخ ہے وہ ان لائک اٹ از ناٹ ایز برائٹ ایز مروتوں کی تاریخ. مروتوں کی تاریخ پہ اگر میں ابھی بات کروں تو مجھے رات تک اگر ٹائم ملے پھر بھی میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا. آئی کین ٹریس دیم بیک ٹو قیس عبدالرشید 1400 سال پہلے. آج بھی افغانستان میں کٹواز ایک علاقہ ہے, اس کی ایک چوٹی کا نام مروت بھی ہے. سلیمان خیل اور غلزئی قبیلے جو ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک انسیسٹرل ریلیشن ہے. تو بڑی ایک برائٹ تاریخ ہے مروتوں کی. لیکن جہاں پہ بات آتی ہے لکی کی تو اٹ از ناٹ ایز برائٹ. دیوان لکی مل کے نام پہ ایک ہندو ٹیکس کلیکٹر تھا جس نے 1836 میں رنجیت سنگھ سے یہ علاقہ جہاں پہ ابھی ہم آباد ہیں یہ انہوں نے لیز کیا. دا مین یوز ٹو ٹیکس دا لوکلز. مجھے ہندو مذہب سے کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے پرابلم ہے اس بندے, میرے لوگوں کو پرابلم ہے اس دیوان لکی مل کے رویے اور عمل سے کہ انہوں نے لوکلز کو ٹیکس کیا. اس کے بعد اس ٹیکس کے بدلے میں نہ ان کو اناج ملتا تھا, نہ ان کو پانی ملتا تھا, نہ ان کو تعلیم ملتی تھی, نہ ان کو کوئی اور فیسلٹی ملتی تھی. یا پیسہ جاتا تھا
रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के राज की तिजोरी में, और जो और ये कमाता था वो उसकी जेब में जाता था। ये एक गुलामी की अक्कासी पेश करता है। हमारे लोग, मरवत कौम, बेटनी कौम, खटक कौम, जितने भी पठान हैं, जैसे कि अभी रियाज खान मेरे भाई ने कहा कि हम हर चीज कबूल कर सकते हैं, हम गुलामी कबूल नहीं कर सकते। सिकंदर आजम के दौर में हमने गुलामी कबूल नहीं की, रंजीत सिंह के जमाने में हमने गुलामी कबूल नहीं की। पाकिस्तान मूवमेंट में मेरे आबा अजदाद, माय ग्रैंडफादर हु वाज एन एमएलए इन 1936, ही वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। हमने अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं की। अभी अफगानिस्तान का आप देखें, 20 साल से वहां पे जंग जारी है। हमारे जो भाई वहां पे लड़ रहे हैं, मुजाहिदीन हैं, तालिबान हैं, वो पठान ही हैं। 20 साल से ईमान के जोर पे वो लगे हुए हैं सुपर पावर के साथ, और आखिर में शिकस्त किसकी हुई? सुपर पावर को हुई, क्योंकि हम गुलामी को कबूल नहीं करते। यही बात है, ये लफ्ज गुलामी की अक्कासी देता है। तो उसके बदले में मेरे और मेरे लोगों ने कौन सा नाम तजवीज़ किया? वो नाम था मुहम्मदिया, मुहम्मदिया मरवत। और ये मैं इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि ये नाम हम सब के लिए बाइस फख्र है। मुहम्मदिया का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार। मुहम्मदिया का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले, खातिमुन नबीयीन मानने वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदारुल अंबिया मानने वाले। तो अगर मैं मुहम्मदिया मरवत का नाम अपने जिले को दे रहा हूं, आज अल्लाह पाक ने मुझे इख्तियार दिया है। मेरी पार्टी के जो लीडर्स हैं, इमरान खान को देखें, सूबे में महमूद खान को देखें, उनका जो भी पॉलिटिकल विजन है, इट रिफ्लेक्ट्स इस्लामिक आइडियोलॉजी। मुहम्मदिया का नाम हमने इसलिए दिया, इसकी तजवीज़ इसलिए दी कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नुकात हैं, उसकी एक दलील है। पहली बात तो यह है कि जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो मोहम्मद का दीवाना है। वो मोहम्मद से निस्बत रखते हुए किसी नाम की मुखालिफत नहीं कर सकता। मैंने अपने बाप दादा का नाम नहीं लगाया मरवत के साथ। और बड़े खान हैं हमारे, मीना खेलों के, मैदान खेलों के, गजनी खेलों के, मैंने उनका नाम नहीं लगाया मरवत के साथ। मैंने तजवीज़ दी है मुहम्मदिया की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, हम मुसलमान तो हैं, उनके हदीस मानते हैं, उनकी रवायात मानते हैं। उससे जाहिर है कि बुरे नामों का असर बुरा होता है, अच्छे नामों का असर अच्छा होता है। उन्होंने खुद कबीलों के नाम बदले हैं, अफराद के नाम बदले हैं। मुझे आपने टाइम देना है जी, थोड़ा सा मुख्तसर करें अपना बयान प्लीज। बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, वरना मैं पूरा दिन भी लगा सकता हूं। बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, लेकिन दिस इज अ वेरी बर्निंग पॉइंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक, सर आप इसके बाद बात कर सकते हैं कि हदीसों का हवाला देते हुए हम ये नाम लेके आए हैं। उन्होंने खुद कहा है कि एक अच्छे से नाम के साथ जब आप मोहम्मद लगाएंगे तो उसकी फजीलत बढ़ेगी। सर मैं कितने ट्यूबवेल बनाऊंगा अपने इलाके में, मैं कितने स्कूल बनाऊंगा, मैं कितनी यूनिवर्सिटीज बना लूंगा, मेरे जैसे और पार्लियामेंटेरियंस होंगे वो भी लगे हैं, लेकिन हाउ कैन वी इंश्योर कि उस ट्यूबवेल से पानी सबको मिल रहा है, स्कूल में तालीम सबको मिल रही है। ये कंट्रोल करना, ये इंश्योर करना कि लोगों को इंसाफ मिल रहा है, सर ये काम अल्लाह पाक का है। हम इस ऐवान में खड़े हैं, यहाँ पे अल्लाह के नाम लिखे हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है। क्यों? क्योंकि इसमें बरकत है। हम यहाँ पे लोगों की फ्यूचर के डिसीजंस लेते हैं। जब अल्लाह की बरकत होगी तो उसमें अच्छा ही होगा। तो हमने ये नाम इसलिए तजवीज़ किया है, हमारे लोग बड़े सफ़र कर रहे हैं, बड़े गरीब हैं। हम इंसान कुछ नहीं कर सकते, कुन फयकून की फजीलत की खासियत सिर्फ अल्लाह में है, वही बरकत डाल सकता है, तो बरकत की वजह है। तीसरी बात यह है कि मरवतों के अलावा इस इलाके में बेटनी कौम रहती है, खटक कौम रहती है, वजीर कौम रहती है। लकी मरवतों को तो शनाख्त देती है, लेकिन बेटनी कौम,
खटक कौम, वजीर कौम, जो मेरे शाना बशाना खड़े हैं मरवतों के साथ, उनको शनाख्त नहीं देती। उनकी शनाख्त लकी से नहीं है, उनकी शनाख्त मोहम्मदिया से है। तो मैं ये तजवीज़ें इसलिए लेके आया हूं कि मेरे लोगों की एक ख्वाहिश है कि हमें एक ऐसा नाम दिया जाए जो कि हमारी ईमान की एक अक्कासी पेश करे। मेरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हर जगह जब खड़ा होता है तो वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाऊं, रियासत मदीना की तरह। रियासत मदीना सिर्फ एक इमरान खान नहीं बना सकता। हम सब जब अपने आप पे, अपने ज़मीर के साथ लड़ेंगे, अपने नफ्स के साथ जिहाद करेंगे, तब ही रियासत मदीना बनेगा। जब उनका विजन रियासत मदीना का है तो मेरा विजन भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपने जिले के साथ मिलाने का है। मैं आपको ये बताता चलूं कि हम सब के लिए एक फख्र की बात होगी। पाकिस्तान में वाहिद जिला होगा ये जो कि मोहम्मद के नाम से निस्बत रखेगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इन्होंने इस नाम की मुखालिफत की। मैं यहाँ पे मौलाना साहब बैठे हैं, इनके वालिद साहब जो थे मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, वो शेखुल हदीस थे। 25,000 फतवे उन्होंने दिए थे। इनकी पार्टी के और जो दूसरे मेंबर थे, जो कि फाउंडिंग मेंबर थे, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब, ही वॉज ऑन एक्सपर्ट ऑन तफसीर एंड हदीस। उनके दिल में मोहम्मद की, सर सिर्फ 2 मिनट, उनके दिल में मोहम्मद की का इश्क था तो इन्होंने इस्लाम के नाम पर एक पार्टी बनाई। लेकिन सद अफसोस कि उसके तर्जुमान आज मोहम्मद के नाम की मुखालिफत कर रहे हैं। तो मेरा इनसे आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अगर इनको एक इमोशनल अटैचमेंट है लकी मरवत के नाम से तो बेशक ये मेरे साथ बैठ जाएं। तहसील लकी मरवत का नाम तहसील लकी मरवत ही रहने देंगे, लेकिन मेरी गर्दन कट जाए, मैं मोहम्मदिया नाम से वापस नहीं हटूंगा। सर 2 मिनट सिर्फ, आखिर सिर्फ 2 मिनट। सर इन्होंने एक कैंपेन शुरू की है सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ कि मैं अपने नाम को बदलूं। बिल्कुल मैंने ये वादा किया है अपने लोगों से कि जिले का नाम बदलते ही मैं अपने नाम के साथ भी मोहम्मद लगाऊंगा, मोहम्मद हिशाम इनामुल्लाह। आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद मोहम्मद रादर देन टू बी एसोसिएटेड विद अ खान। लेकिन मैं इनके इल्म में थोड़ा इजाफा करना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हिशाम अबू जहल का बाप था, इसलिए इनको मेरा नाम बुरा लगता है। मुझे तो मुनव्वर खान का नाम बड़ा अच्छा लगता है। मदीनतुल मुनव्वरा की खाक से मैं कुर्बान हो जाऊं, उसमें मुनव्वर है, मुझे इनका नाम अच्छा लगता है। इनको मैं ये भी बताता चलूं कि एक तरफ हिशाम का बेटा अबू जहल था जो हमारा दुश्मन था और हमेशा रहेगा, लेकिन एक तरफ उसका नवासा जो था वो उमर इब्न खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु था। मैं हजरत उमर इब्न खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखता हूं। 23 सहाबी हिशाम के नाम पे थे। हिशाम इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए गजवा में और सारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के हमरा उन्होंने जंग लड़े हैं। आई एम प्राउड ऑफ दैट। खलीफा हिशाम गुजरा है बनी उमैया का, 3 बादशाह हिशाम गुजरे हैं। और ये हिशाम जो यहाँ पे खड़ा है, ये इसकी ईमान की इतनी पुख्तगी है कि आज जमाने के जो अबू जहल हैं उन पे मैं अल्लाह के कहर की तरह टूट पड़ता हूं। आखिरी बात, इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपनी सीट से रिजाइन दें और मैं अपनी सीट से रिजाइन दूंगा और फिर हम जाएंगे वहां पे और एक एक घर से पूछेंगे कि आपको कौन सा नाम पसंद है। मैं इनको यहीं से कहता हूं कि मुझे तो क्या मेरे सारे लोगों को, कोई इंसान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन रखता है उसको मोहम्मद से अजीम नाम मिल ही नहीं सकता। अगर इनको चैलेंज ही मुझे करना है तो मैं अभी बेवकूफ तो नहीं हूं कि मैं 2 साल, ये तो 12 साल माशाअल्लाह इस ऐवान में रह चुके हैं। अगर ये ऐवान के अंदर हो या ऐवान के बाहर हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मैं रिजाइन कर लूं। मेरे बॉस अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की वसातत से और चीफ मिनिस्टर महमूद खान की वसातत से जितने फंड्स स्वात को मिले हैं उतने लकी मरवत को उन्होंने दिए हैं।
मैं अगर रिजाइन कर दूं वो सारे फंड्स रह जाएंगे, वो सारी स्कीम्स रह जाएंगी। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि मैं पीके 92 से मुंतखब हुआ हूं, इनका हल्का पीके 91 है। अगले इलेक्शन में मैं दोनों हल्कों पे लड़ूंगा। उस वक्त ना मैं जिले के नाम पे वोट मांगूंगा या ना ये इस्लाम के नाम पे वोट मांगेंगे, हम कारकर्दगी के नाम पे वोट मांगेंगे और मैं देखता हूं कौन जीतता है पीके 91 पे। ये मेरा चैलेंज है इनको। आखिर में बस यही कहूंगा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह व कलम तेरे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।